I'm recording. So today we are going to discuss about toilet ventilation. Today we are going to discuss about toilet ventilation. So toilet ventilation. So why we require toilet ventilation? Before that, types of air. So how many types of air we have in HVAC system? In HVAC system we have four types of air. Four types of air. One is supply air, return air, fresh air, and exhaust air. So what is difference between fresh air, return air, exhaust, fresh air? So supply air. So supply air is means which air is coming out from our equipment. AHU, FCU. It means cool air. So supply air will call cool air and return air. So return air is nothing but wherever we are sending our supply air means cool air. Wherever we are sending supply air from that same space, if we are taking return air to our equipment, it's called return air. So supply air is cool air. That cool air we are specific area we are sending like movie theaters, mall, pub, restaurant, community hall, whatever where we are sending. The same area only if we are taking air to return to again our equipment is called return air. And then fresh air. Fresh air is just we are taking air from atmosphere and we are sending to our required area wherever. Either it is function hall, either it is mall, either it is toilet, either it is pub, either it is a restaurant, wherever. Just we are taking air from atmosphere. Through that we are going to send to specific area. That is called fresh air. Fresh air means ambient air. There we are not going to reduce any temperature. And then exhaust air. Exhaust air means wherever we are sending our fresh air, the same area only if we are taking air out and we are going to give to atmosphere. So that is called exhaust air. So now if people understood what is supply air, what is return air, what is fresh air, what is exhaust air, because our HVAC system is entirely depending upon our type of air. HVAC, heating, ventilation, air conditioning. In air conditioning, this two air will come. Air conditioning means two air, supply air and return air. Ventilation means this fresh air and exhaust. This fresh air and exhaust. So now coming to our topic. So usually we have three types of toilets. Usually we have three types of toilets. So one is house appliance. So usually house appliance inside the toilet we have toilet seat and one shower. Except these two, more than any equipment we have inside the toilet area, anyone having normal attached bathrooms. So one is toilet seat, one is shower, and then villa, bungalow, whatever. So this entirely our toilet room. Here separate room we have. Here we have one toilet seat, one tub, one shower, one urinal. So this is villa type and common toilets. So this two belongs to private toilets where people are using privately. It means houses, house appliance. This is called public toilet. So where different people are going to use this type of toilet, like movie theaters, malls, restaurants, wherever. So this is called common toilets. So in common toilets, we have toilet seat, on one side urinals,
and hand wash. Except these things, anything we have in toilets? Anyone? Sir, Didn't we you? also have wash basin. Sorry? Wash basin, sir. Wash basin. Wash basin, hand wash only. Okay, sir. Hand wash is nothing but hand wash basin. So wash basin it will come near this kitchens. So except these things, anything we have missed here. And then coming to our thing. So just I'm changing color for red. T enter text. So here I'm going to give CFM. How much CFM we have to take out from our washrooms? So wherever we have toilet seat, there we have to take 50 CFM, and wherever we have shower, 25 CFM. लीड है क्या टिप Sorry. कहाँ करते हैं मैंने याद है हमारी ठीक है भाई So whatever, either is common toilet or public toilet, usage will be same, right? And jet tub bath also 50 CFM, shower as usually 25 CFM. Urinary also 25 CFM. So urinary here, one urinary 25 CFM, right? So what I'm doing, for two urinals I'm taking single. It means 25 plus 25, 50 CFM. Here will be 25 CFM, and then hand wash. 50 CFM plus 50 CFM. Understood this concept, everyone? So just simple concept will be, toilet seat will be 50 CFM, shower will be 25 CFM, tub bath will be 50 CFM, urinary will be 25 CFM. Yes, tell me. ये 50-25 हमने मतलब assume किया है खुद से या फिर कुछ standard common practice है? समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ सर ये जो आपने CFM किया है 50 CFM इसका कोई स्टैंडर्ड है या फिर स्टैंडर्ड है? आईएसआई 62.1 स्टैंडर्ड जो आपको मेटल मिला है ना उसमें आपको मिल जाता। ओके सर, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट के लिए दोनों के लिए CFM सेम रहता है? हाँ सेम होता। तो उसके लिए अभी देखो, अभी मैं इसका डिफरेंट वही बताने वाला हूँ। देखो कॉमन टॉयलेट्स आपको रेगुलर यूजेज होता कंटिन्यूसली, right? But coming to private toilets, so some cases only we are going to use, not regularly, compared to common toilets and private toilets and public toilets. So nowadays what we are going to do, for wherever we have fixed our equipment, so there we are going to connect with our thermostat sensor, so that if people are using public private toilets, so it will sense these signals from human. Then if anything producing inside the toilet,
then our equipment will going to on automatically. Then whatever the air is there inside the toilet, so it's going to throw outside. If तो थोड़ा हिंदी में बता दो सर तो अच्छा रहेगा। yes yes yes, ये पहला अच्छा, तो मैं कहने के है कि ये वाला है कि प्राइवेट पब्लिक टॉयलेट, सॉरी प्राइवेट टॉयलेट्स जो स्पेसिफिक पर्सन से यूज करते हैं, मतलब घर का बंदे। ये वाला है कॉमन टॉयलेट्स। कॉमन टॉयलेट्स मतलब आता है कि पब्लिक टॉयलेट्स, इसमें जो भी जा सकते हैं, जो भी यूज कर सकते हैं। इसका यूसेज हमेशा होगा आपको, नंबर ऑफ पीपल एंटर होते, नंबर ऑफ पीपल आउट होते, और इसके लिए तो रेयर केसेस यूज करते हैं इसको, तो मतलब सुबह शाम दोपहर में, हमेशा पीपल इसको यूज नहीं करते। तो दोनों के लिए, पब्लिक टॉयलेट और प्राइवेट टॉयलेट के दोनों के लिए हम इक्विपमेंट फिक्स करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट टॉयलेट्स है इसके लिए हमें थर्मोस्टेट फिक्स करते हैं हमारा इक्विपमेंट के लिए। जब पर्सन अंदर जा रहे, जब पर्सन यूज कर रहे, उसी वक्त पर्सन के थ्रू पर्सन हमारा थर्मोस्टेट सिग्नल लेकर इक्विपमेंट को सिग्नल दे देता, तो उसी वजह से हमारा इक्विपमेंट ऑन हो जाता ऑटोमेटिकली। जब इक्विपमेंट ऑन हो रहे, अंदर जो बैड स्मेल, जो एयर प्रोड्यूस हो रहे, इसको पूरा एटमॉस्फेयर थ्रो कर देता। बाकी टाइम जो पर्सन अंदर नहीं, बाकी टाइम पूरा मशीन ऑफ हो जाता। तो ऐसा करने की वजह से पावर कंजम्पशन सेव कर सकते हम। एनर्जी सेविंग प्रोसेस है। और जो कॉमन टॉयलेट्स है इसके लिए कुछ थर्मोस्टेट नहीं लगाते, तो ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसका इक्विपमेंट ऑन ऑफ नहीं करते, ये हमेशा ऑन में होगा एक्सेप्ट नाइट। समझ गए सभी लोग? यस सर। यस सर, यस। So public toilet and private toilet both we are taking same CFM only. There is no difference. The difference is equipment selection and CFM range. So for this equipment it won't work every time. Whenever usage is there, that time only it's going to work. But for this type, always equipment will work. This is the main difference between public toilets and private toilets. And then, so DO enter, do not, click and pull, 0 enter, 100 enter, and then C enter, circle, 75 enter. इसको मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, B enter block, DISC disc valve, exhaust EA, pick a point, center select कर रहा हूँ, and then OK। तो ये बन गया हमारा ब्लॉक। सो डिस्क वाल्व सभी लोग देखे हैं? नहीं सर। ये होता हमारा डिस्क वाल्व, इसको हम टॉयलेट में यूज करते हैं, इसको हम सप्लाई के लिए यूज करते हैं एज वेल एज एग्जॉस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमको एक डैम्पर मिल जाता, तो इसी through this damper we are going to control our airflow. Here can see damper. Yes. Through this damper we are going to control our airflow. ये रूफ माउंटेड होता है या वॉल माउंटेड होता है? Ceiling mounted. सॉरी, सीलिंग माउंटेड भाई, सीलिंग माउंटेड। ओके। तो यह है डिस्क वाल्व। यूजुअली हमको डिस्क वाल्व मिलता है कि 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। सो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इंच डिस्क वाल्व सेलेक्ट कर रहा हूँ। 4 इंच का डिस्क वाल्व CFM होता है कि 75 to 150 CFM। इसका मतलब
75 से 150 CFM हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं एज वेल एज सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि 4 इंच डिस्क वैल्यू से सिर्फ हम 75 से स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ है। हम इसमें 10 CFM भी ले सकते हैं, 20 CFM भी ले सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 150 तक ले सकते और दे सकते। अगर समझो कि आप 20 CFM देना चाह रहे, डैम्पर को फुल क्लोज करो, जस्ट लिटिल मे बी 1 और 2 डिग्री एंगल यूज करें तो आपको 10-20 CFM रेंज आप मेंटेन कर सकते। अगर आप समझो कि फुल ओपन कर दिए 150 CFM, this CFM range entirely depending upon our damper control. Understood everyone? Yes, sir. तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, CO एंटर कॉपी। तो मेरा डिस्क वेल इधर लगाया हूँ। फर्स्ट हम डिस्क वेल प्लेसमेंट करना है और मेरा डिस्क वेल को इधर कर रहा हूँ और इधर एक सेंटर में लगा रहा हूँ। अभी एक्चुअली देखो, जहाँ जहाँ टॉयलेट सीट है मैक्सिमम आपको टॉयलेट सीट के बराबर डिस्क वेल प्लेस करो। ऐसा करने से जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है एयर, ये पूरा डायरेक्टली एग्जॉस्ट होता है। लेकिन जब आप इंडिविजुअली दे रहे, कॉस्टिंग विल इंक्रीज, इसलिए हम क्या कर रहे, ऐसा दोनों को मिलाकर एक दे रहे सेंटरली। समझ गए कैसे दिया है मैं? अभी हम आपको बताते हैं, जस्ट कलर चेंज कर रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ये दोनों के ये डिस्क कवर हो सकता होगा या नहीं? हो गया। और ये दोनों के लिए होगा, यस। और यहाँ तक ये होगा, ये 2 यूरिनर और ये टॉयलेट सीट के लिए होगा। यहाँ तक एक होगा यस। और यहाँ तक एक होगा। तो ये पूरा आप डिवाइड करना है, समझे? यस, ओके। सभी लोग समझ गए? यस यस सर। Yes, sir. तो जब भी आप टक्टिंग करते हैं, पहला प्रोसीजर है एयर टर्मिनल प्लेसमेंट। एयर टर्मिनल व्हाटएवर, डिस्क वेल, डिफ्यूजर्स, ग्रिल्स, व्हाटएवर, पहला आप एयर टर्मिनल प्लेस करना है। उसके बाद सिंगल लाइन डक्टिंग ड्राइंग। सिंगल लाइन डक्टिंग ड्राइंग में करने की वजह से आपको पता चलता कि किधर किधर क्लैशेस होगा, किधर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद डबल लाइन डक्टिंग करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एयर टर्मिनल प्लेस कर रहा हूँ, उसके बाद सिंगल लाइन डक्टिंग ड्राइंग, एल एंटर लाइन, तो इधर डक्टिंग ऐसा पास कर रहा हूँ।
इसको बोलते हैं सिंगल एंड डक्टिंग ड्राइंग। तो हमारा डक्ट पूरा डिस्क वाल को कवर कर रहे हैं। और याद रखे हमारा डिस्क वाल हमेशा बिलो द डक्ट होगा मैक्सिमम केसेस। अगर पॉसिबल नहीं, देखो इधर पॉसिबल नहीं, आप समझ रहे हो कि स्ट्रेट डक्ट बनाना चाहते हैं ऐसा, तो डिस्क वाल से डक्ट को हम फ्लेक्सिबल डक्ट यूज करना है कनेक्शन के लिए, समझे? यस तो फ्लेक्सिबल डक्ट अवॉइड करने के लिए मैं एल्बोस लेकर काम कर रहा हूँ। सभी लोग समझ गए सिंगल एंड डक्टिंग ड्राइंग? अभी इसका कैलकुलेशन होगा। CO एंटर कॉपी। तो टोटल इस टॉयलेट के कितना एग्जॉस्ट हो रहा है हमारा? 75 75, राइट, एब्सोल्युटली 75 CFM। और विला के लिए कितना हो रहा है? 125 सॉरी 150 50 plus 50 100, 100 plus 25 125, 125 plus 25 will be 150 150, right? और इसका लिए कितना हो रहा है चेक करो। पहला 50 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 into 50, 550 हाँ 550 550 550, 550 plus 25 575 575। तो टोटल हमारा हो रहा है 575। तो इसके लिए हम डक्टिंग करना है। तो डक्टिंग करने के पहला प्राइवेट टॉयलेट्स जो भी है आपके लिए प्रेशर की जरूरत नहीं, आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट टॉयलेट्स तो बहुत रेगुलरली यूज नहीं करते, जब भी टाइम चाहिए तभी तभी यूज करते। और इसके लिए जो भी प्रेशर है आपको जहाँ पे अटैच कर रहे हैं, मतलब समझो कि इस टॉयलेट को हम अटैच कर रहे हैं बेडरूम को, बेडरूम से जो भी प्रेशर है वो ले सकता है, क्योंकि हम टॉयलेट में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ प्राइवेट टॉयलेट्स है, कॉमन टॉयलेट्स, तो यहाँ तो हम प्रेशर देने 100% दे रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल एंटर हो रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल आउट हो रहे हैं, तो उन सभी लोगों को हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए प्रेशर डक्टिंग करने वाले हैं, समझे? तो प्रेशर डक्टिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर डक्टिंग प्रेशर कैलकुलेशन। तो ये जो होता है कि जितना एरिया एम्प्टी स्पेस है, तो मतलब एक्सेप्ट दिस रूम्स, बाकी जितना एम्प्टी है उतना प्रेशर देना है। अदरवाइज जितना हमको एग्जॉस्ट दे रहा है उसके लिए 80% प्रेशर दोनों हमको बता देते। एल एंटर पॉलीलाइन। पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा फ्री स्पेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, एरिया। एल आई एंटर लिस्ट, सेलेक्ट दिस पॉलीलाइन, एंटर। कितना आ रहा है मेरे एरिया, वो पूरा कंट्रोल C, ओपन कैलकुलेटर, कंट्रोल V, डिवाइडेड बाय 10 lakhs।
38.7 square meters into 10.76. How much we are getting? 416 square 4 feet. feet. 416 square feet. Square meter to square feet conversion factor will be 10.76 into 10.76. ये कन्वर्शन फैक्टर सभी को मालूम है या किसी को डाउट है? मालूम है सर। ओके ठीक है, किसी का डाउट है तो पूछो। अगर आप सभी लोग पूछने के लिए शर्म आ रहे, पर्सनली मैसेज करो मेरे को, कुछ डाउट होगा तो। ओके सर, थैंक यू। तो सभी के सामने पूछने के लिए अगर आपको शर्म आ रहे तो पर्सनल मैसेज करो मेरे को। नहीं सर, हमें सर किस बात की, मैं पहले बताते में कुछ नहीं होता एक्चुअली, इसमें जीरो है। हाँ हाँ, क्या बोले? हम कह रहे सर अधिकतर यहाँ पे जीरो है एक्चुअली, इसी पे जो कुछ आता नहीं है। आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है यार। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपके? कंटिन्यू करो सर। कंटिन्यू करो सर, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, तो अभी हमारा ये हो रहा है कि 416 स्क्वायर फीट। सो इसको मैं राउंड फिगर 420 ले रहा हूँ। एंटर कॉपी, 420 स्क्वायर फीट